بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کسی انسان پر یہ 5 نشانیاں اچھے وقت آنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں۔ ناظرین گرامی، جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کا وقت بدلتے ہیں تو فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنانے میں دیر نہیں کرتا۔ کب، کیوں اور کیسے کسی انسان کا وقت بدل جائے اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کا وقت بدلنے والا ہو، برے وقت سے اچھا وقت شروع ہونے والا ہو، تو ایسے انسان پر اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے کون کون سے نشانیاں ظاہر ہوتی ہے؟ یعنی آپ اس بات کا کیسے پتہ لگا سکے ہے کہ آپ کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ اگر آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے تو یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بتائی ہوئی 5 ایسی خاص نشانیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو کسی انسان پر اچھا وقت آنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہے۔ یعنی اگر کسی انسان کو اپنی زندگی میں ان 5 نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی بھی دیکھنے کو مل جائے تو اس انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اب قریب اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا علی، کیا کوئی انسان جان سکتا ہے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ یعنی کسی انسان کا اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے کون کون سے نشانیاں ظاہر ہوتی ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے اس شخص کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی انسان کا وقت بدلنے اور اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے 5 نشانیاں کو ظاہر کرتا ہے، جنہیں دیکھ کر انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا نیک اور اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اس شخص نے عرض کیا، یا علی، وہ 5 نشانیاں کون سی ہیں جو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے شخص، وہ 5 نشانیاں یہ ہے۔ نمبر 1، فجر کے وقت آنکھ کھلنا۔ آپ نے فرمایا، جب انسان کی آنکھیں نماز فجر کے وقت کھلنے لگ جائیں اور اس کے دل میں بستر کو چھوڑ کر نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے، یا اسے ایسا محسوس ہونے لگے کہ اس کا رب اس کو اپنی طرف بلا رہا ہے، تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے، اس کا وقت بدلنے والا ہے اور بہت جلد اس کا وقت اچھا شروع ہونے والا ہے، اسے پر کامیابی اور کامرانی کا دروازہ کھلنے والا ہے، اسے زندگی میں ایک نیا اور روشن راستہ ملنے والا ہے۔ کیونکہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سنا ہے، زمان فجر کے وقت اٹھنے والے کی اللہ تعالی خود حفاظت کرتا ہے، حفاظت فرماتا ہے اور ان کو اپنی رحمت میں گھیر لیتا ہے۔ اگر آپ کی آنکھ بھی نماز فجر کے وقت کھلنا شروع ہو جائے اور آپ کے دل میں بھی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا وقت بھی بدلنے والا ہے۔ نمبر 2، جس کو اللہ تعالیٰ کا دین سمجھ آنا شروع ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اسے دین کی سمجھ بوجھ ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، میں نے خود نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کا علم تو ہر کسی کو ادا کرتا ہے، لیکن دین کا صرف اسی شخص کو ادا کرتا ہے جسے وہ پسند فرماتا ہے اور پسند فرما لیتا ہے۔ اور پھر فرمایا، علم ایک نور ہے
खुदा जिसे चाहता है उसके दिल में ढाल देता है, और खुदा जिसे दीन का इल्म अदा कर दे उसे अपना महबूब बना लेता है। फिर ऐसे शख्स के दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत, रसूल खुदा की मोहब्बत पैदा हो जाती है। अल्लाह ताला का जिक्र करने और उसके इबादत करने का शौक पैदा हो जाता है। उसका दिल जिक्र इलाही के लिए तड़पने लगता है। नाज़रीन, यही वो चीज है जो इस बात का निशानी है कि उस शख्स का अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। नंबर 3, आजमाइशों में सब्र करने लग जाना। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ताला जब किसी बंदे को पसंद फरमाता है तो उसे थोड़ी आजमाइश में भी डालता है। ऐ शख्स, याद रखना, मैंने रसूल खुदा को यह कहते हुए सुना है कि जब अल्लाह ताला किसी इंसान को अपना महबूब बनाना, प्यारा बनाना चाहता है तो परेशानियां और मुसीबत से उसकी आजमाइश भी करता है। खुदा अपने बंदे को देखना चाहता है कि मेरा यह बंदा इस मुसीबत में सब्र और शुक्र से काम लेता है या मेरी ना शुक्री और नाफरमानी करता है। जब इंसान अल्लाह ताला के फैसले पर राजी हो जाए तो अल्लाह ताला भी उसे शख्स को उसे दुनिया में से भी राजी करता है और आखिरत में भी राजी करेगा। और जो शख्स शैतान की बातों में आ जाए और ये सोचने लग जाए कि मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ है, हालांकि मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, रोजा भी रखता हूँ, उसकी इबादत भी करता हूँ, ये परेशानियां और मुसीबतें आखिर मेरे ही मुकद्दर में क्यों हैं? लोग अक्सर खुद और परेशानी की हालात में ऐसा सोचते हैं, लेकिन याद रखें, एक मुसलमान को ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मायूस कुफ्र है और अल्लाह ताला कुफ्र को नापसंद फरमाता है। उसे ऐसे लोगों की तरह देखना चाहिए जो उससे कई ज्यादा दुख दर्द और मुसीबत में मुब्तला है, ताकि उसका दुख दर्द कम हो जाए और उसे अल्लाह ताला के फैसला पर राजी रहना चाहिए। एक मर्तबा हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु से किसी ने पूछा, ए बिलाल, आप तो बड़ी तौहीद की बातें करते हैं, हर वक्त कहते हैं फरिश्ते हो, अल्लाह ताला इंसान से बहुत मोहब्बत करता है। अगर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है तो तुम्हें इतनी मार क्यों पड़ती? उस पर हजरत बिलाल ने फरमाया, ए शख्स, जब तुम बाजार में बर्तन खरीदने जाते हो तो बर्तन खरीदने से पहले उसे बजा बजा कर देखते हो कि ये कितना मजबूत है। बस इसी तरह से अल्लाह ताला ने भी मुझे आजमाया था। जब मैं अल्लाह ताला की आजमाइश पर खड़ा उतरा तो अल्लाह ताला ने मुझे वह मकाम अदा किया जिसके लिए दूसरे लोग आज तक तरसते हैं। नाजरीन गिरामी, हजरत बिलाल हबशी को वह सहाबी है जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिराज पर तशरीफ ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने आगे आगे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। यह मंजर देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल से फरमाया, ए जिब्राइल, यहाँ कौन है जिसके कदमों की आवाज आ रही है? तो उस पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यह हजरत बिलाल हबशी है। फिर अल्लाह के नबी जब मेराज के सफर से वापस आए तो हजरत बिलाल से पूछा, ए बिलाल, तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो? तो उस पर हजरत बिलाल ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, ये अमल आप ही ने मुझे बताया था। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बिलाल, मैंने आपको क्या बताया था? तो हजरत बिलाल फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, आपने बताया था कि हर वक्त वजू रहा करो, इसीलिए मैं हर वक्त वजू की हालात में रहता हूँ। जब मैं वजू हो जाता हूँ तो फौरन ही नया वजू कर लेता हूँ, और जब मैं वजू कर लेता हूँ तो फिर 2 रकात नमाज भी अदा करता हूँ। यही वजह है कि हम
चलते जमीन पर है, लेकिन कदमों की आहट अर्श तक सुनाई देती है। तो ये शख्स याद रखना, आजमाइश में भी अल्लाह ताला की मोहब्बत और कामयाबी की निशानी है। तो तुम परेशानी में सिर्फ एक ही बात याद रखो, अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदे को ही आजमाता है। नंबर 4, चेहरे पे रौनक आ जाने लगी तो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जिस इंसान के चेहरे पे सदा बिया रोशन आने लग जाए तो उसे समझ जाना चाहिए कि बहुत जल्द ही उसका वक्त बदलने वाला है और उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। अल्लाह ताला ने इंसान को अपना महबूब बनाना होता है तो उसके चेहरे पे नूर आने लगता है। उस नूर की वजह से उसका चेहरा गुलाब की तरह खिल जाता है। ऐसा इंसान फिर हर वक्त दुनिया के सामने खुशी का इजहार करता है, बल्कि ऐसा लगने लग जाता है कि उस इंसान से बड़ा पुरसुकून इंसान दुनिया में कोई और है ही नहीं। ऐसा लगता है कि दुनिया का कोई गम उसे कभी छूकर भी नहीं गुजरी होगी। वह हर वक्त हर हाल में खुश नजर आता है, उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कान दिखाई देती है और वह अपने गुस्से पर काबू पाने लग जाता है। तो ऐसे इंसान को समझ जाना चाहिए कि उसकी जिंदगी में अब खुशियों की बारिश होने वाली है, उसका वक्त बहुत जल्द बदलने वाला है। ऐसे इंसान को अल्लाह ताला उसकी उम्मीद से भी ज्यादा अदा फरमाता है। नंबर 5, कनात करना। नाज़रीन, कनात का मतलब है हलाल तरीके से जितना मिल जाए उससे पर राजी रहना, ज्यादा हर्ष और ज्यादा लालच से हमेशा बचते रहना। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, कनात वो सरमाया और वह कभी खत्म नहीं होता। कनात करने से खर्चों में कमी आ जाती है, जिससे मालो रिस्क में इजाफा होता है। कनात की वजह से इंसान के दिल में हर्ष और लालच खत्म हो जाता है। फिर जब उसके पास ज्यादा माल आता है तो वो उसे गरीबों और मिस्किनों में बांटना शुरू कर देता है। जब कोई इंसान अपना माल गरीबों और मिस्किनों में बांटने लग जाता है तो अल्लाह ताला उन शख्स पर अपने गैब के दरवाजे के मुंह खोल देता है। देखते ही देखते उसका वक्त बदलने लग जाता है, उसका दिल रोशन हो जाता है। ऐसा शख्स फिर कभी भी शिकवा शिकायत नहीं करता, बल्कि कहता है अल्लाह जो भी करता है बेहतर ही करता है। तो ऐसे शख्स के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, ए जिब्राइल, मैंने इस बंदे को अपना महबूब बना लिया है, तुम भी इसे अपना महबूब बना लो। फिर जिब्राइल अली इस्लाम वादनी कराते हैं कि यह बंदा अब अल्लाह ताला का महबूब बन चुका है। इस मंदानी को सुनकर सातों आसमान के फरिश्ते भी इस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर एक फरिश्ता आसमान से दुनिया में आता है और यह ऐलान करता है, फला शख्स अल्लाह का महबूब है। आसमान के तमाम फरिश्ते उससे मोहब्बत करते हैं, लिहाजा तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर अल्लाह ताला अपनी तमाम मखलूकात से उसको लिए मोहब्बत करने का पैदा अदा फरमा देते हैं। तो नाज़रीन, जिस इंसान को इस 5 निशानियों में से अगर एक निशानी भी दिखने को मिल जाए तो उसे समझ जाना चाहिए कि बहुत जल्द उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है।